हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ Ask Anji Swag, and thank you so much for all the love and all the supports and all the emails that you guys keep sending me. I try my best to answer as much as I can on text as well, क्योंकि एपिसोड में तो 4-5 से ज़्यादा नहीं ली जा सकती क्योंकि वो फिर बहुत लंबी हो जाती है. So yeah man, and keep supporting on Patreon and do subscribe to the channel. और अगले 3 घंटे में अपलोड करनी है. So without further ado, let's go to the emails. The first one comes, it says, Sam Junaid Bhai, it's been a long time I've been listening to your podcast, but whenever I get a chance to listen, they're always like energy boost gushed into my blood, and I really feel energized right from the inside. Thank you. I would like to apologize right in the beginning of my mail as it's going to be a longer than usual. That's perfectly fine. I want you not to disclose my identity. Okay. A lot of things I would like to discuss with you. 2.5 years back, I got divorced with the charges of infidelity, and since then, I'm living all alone. Going back to the start of the trauma, in 2005, I got married with my ex husband. Necessary to be added that I'm from a Shia family and my ex husband was from a Sunni family. The clash started right from the Walima day when I was all dressed up as a bride and I heard my mother in law saying कि हम इनके घर वालों के गले में हार क्यों डालें, कोई हमारी बेटी की बारात तो नहीं उतरी. Okay, it's a shitty thing to say on a walima. Anyways, life started as happy as it could be because it was a love marriage. Let me tell you that I'm 2/3 year older than my ex-husband. But as they say, dil aane ki baat hai. Okay, that's perfectly fine. Since 1993, after my father's death, I started working as a teacher and grew up so well professionally that when I got married, I was a teacher at Falana school, which is one of the biggest schools in Karachi. I'm not going to name it. I had my son in 2006 and the second one in 2008. Unfortunately, the younger one passed away, and since then, I was labeled as Katila or Sampni, who ate her own kids. That's really sad. Let me tell you that I was working with the wish and will of my ex-husband. Moving forward, in 2010, I was blessed with a baby girl and things again went normal. My ex-husband and my in-laws never allowed me to attend any majlis in Muharram, and they even objected my mourning expressions on the day of Ashura. Once I came from shopping with my ex-husband, my 2-year-old daughter came to me and asked, Mama, aap kafir hain? Oh, that's very sad. Upon which my mother-in-law was in a complete state of denial. Then in 2016, a cousin of mine came in contact after ages, and my mother-in-law briefed my ex-husband in a way as if I was having an affair with him. That cousin of mine is, mashallah, happily married and have university college-going kids. This accusation kept on piling up despite of the fact that I kept clarifying my ex-husband that there is nothing like that. However, since then, he started to spy on me through all angles, peeped in my cell phone, email, and found nothing. But my mother-in-law continued her conspiracies, and they end up in a divorce in 2017. During my iddat period, my ex-husband reconciled, and again in a span of 2 months, he pronounced me second divorce. Since then, my kids are in a terrible state of mind because their father allows them to meet me once or twice in a week. When I asked him about this jail meeting system, he replied, मेरे cousin ने भी अपनी wife को divorce दी है और वो बच्चे ले लिए हैं. तुम तो शुक्र करो मैं बच्चों को मिलने देता हूँ. Then he came to me and said मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और बच्चों को तुम तैयार करो कि वो आने वाली को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करें, और ऐसे नहीं किया तो बच्चों की सूरत देखने को भी तरसा दूंगा. I consulted one of the mufti at Jamia Falana, who said that it's the second divorce and both of you can remarry. For the sake of the kids, I spoke to my ex-husband. He insulted me to the worst. I just want to ask you to guide me how to handle such situation. Let me tell you, my parents are no longer alive, and due to my divorce, my siblings don't meet me either. They don't help me out financially. Currently, I'm working with Falana as a design specialist. ठीक है. Thank you so much for your email. So basically, there's a situation. There was a Shia Sunni marriage. और फिर जो है मामला बिगड़ते गए. 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई सैडली, और फिर उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद हर ओन कज़न, जो उनकी सास की तरफ से लगाया गया, विच रिजल्टेड इन अ डिवोर्स. बट चूँकि वो एक डिवोर्स थी तो फिर रिकन्सिलिएशन हुई, फिर दूसरी डिवोर्स हुई, और अब उनसे कोई मिलता भी नहीं है, पेरेंट्स हैं नहीं, और
साहब जो है दूसरी शादी करना चाहते हैं, ही वांट्स हर टू टीच द किड्स, कि उनको तैयार करें मेंटली कि दूसरी अम्मी आ रही हैं वगैरह वगैरह। एंड शी वेंट, और ये फिर किसी मुफ्ती के पास गई, उन्होंने कहा कि अभी सेकंड डिवोर्स है तो अभी भी आप री मैरी कर सकते हैं। सो शी थॉट कि बच्चों की खातिर मैं कर लेती हूँ दोबारा, मगर उनको उनकी काफ़ी इंसल्ट की गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी टू हेयर ऑल दिस। मुझे ये समझ नहीं आता कि देखें ये जिस तरह की जो इंटरसेक्ट मैरिजेस होती हैं ना, इसमें पहले बहुत ज़रूरी है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ, आपका तो खैर हो गया, अब यू कांट चेंज द पास्ट, कि ना ऐसी मेरे पास बहुत ईमेल्स आती हैं शिया सुन्नी वाली, बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसमें ना आपने अच्छी तरह ना पहले तो अपने आप को भी क्लैरिटी देनी है। वो ठीक है, प्यार के टाइम आपको ना नहीं समझ आ रहा था, कहते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं, बच्चे होंगे। फिर जब बच्चे हो जाते हैं फिर आपको होती है कि यार इनको हाथ बांध के नमाज़ पढ़ानी है, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ानी है। फिर जो है ना आपका एक अलग, क्योंकि प्यार तो फिर वो पीछे कहीं रह जाता है ना, फिर कॉमन सेंस आना शुरू होती है लोगों में सपोजिटली। तो ना इस चीज़ में पहले ही क्लैरिटी ले लिया करें आपस में भी और फिर अपने पेरेंट्स से भी। अब ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि आप काफिर हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना दुनिया भर में, वो प्राइमरीली उनके अंदर लव इमोशन होता है, हेट्रेड हमेशा सिखाई जाती है। बच्चे प्राइमरीली देर वेरी लविंग, जानवरों से भी प्यार करते हैं, दे डोंट सी रेसेस। आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, गोरा बच्चा है काले बच्चे को गले लगा रहा है, लाइक दे डोंट सी एनी डिफरेंसेस। जानवरों को भी प्यार कर रहे होते हैं अनटिल और अनलेस वो जानवर बाइट करे या कुछ करे, वो डराए बच्चे को। तो ये चीज़ें ना सिखाई जाती हैं कि किसके हेट किससे करना है, शिया से हेट करना है या जो है आपने इंडियन से हेट करना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप सिखाते हो और इट्स रियली सैड कि अपनी माँ के अगेंस्ट बच्चों को थोड़ी कुछ पता, और बच्चे इस तरह सीखते हैं। आई गेट सो मेनी ईमेल्स लाइक दिस वेयर इन कि अगर कोई बच्चा है शिया, तो स्कूल में बच्चे उसको, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन इन इंग्लैंड मैंने ये केसेस सुने कि बच्चे को, एक बच्ची का कत्ल कर दिया था इंग्लैंड में अभी ब्लैकबर्न में, एक वाक़या हुआ था, 15 साल की बच्ची, बिकॉज वो शिया थी, उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर एक और केस हो कि जब बाद में आई थिंक जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी को या कुछ था, फिर उसको जब पता चला, नहीं उस बच्चे के लिए फंड रेजर हुआ, उसकी बच्चे की माँ के लिए, आई थिंक, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और व्हेन दे फाउंड आउट कि वो शिया फैमिली थी, फंड रेजर भी वापस ले लिए लोगों ने अपने। लाइक इतनी हेट्रेड है लोगों के अंदर। तो अब ये बच्चों को किसने सिखाया कि ये काफिर है या फलाना ऐसे है फलाना वैसा है? ये बड़ी गलत बात है। तो ये चीज़ें पहले से डिस्कस करनी चाहिए बहुत क्लैरिटी के साथ, कि भाई आगे क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना, व्यू पॉइंट्स के बारे में, एक दूसरे के जो भी ओकेजन्स होते हैं उस पर रिस्पेक्ट करना कि ठीक है। आई मीन लाइक ऑब्वियसली एज अ सुन्नी यू माइट नॉट फील द पेन ऑफ आशूरा, बट लाइक दूसरे को तो होता है ना। सो लाइक यू हैव टू बी वेरी, एंड वाइस वर्सा, किसी भी उसमें सेक्ट में हो आप। सो दैट डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अब लव मैरिज थी, अब माँ को तो पता था कि शिया है, तो फिर जब अगर माँ के जहन में ये चीज़ें थी कि जी वो काफिर होते तो फिर शादी नहीं करने देती, शादी क्यों करने दी? और फिर एनीवे, सो मूविंग ऑन, I know you want to reconcile for your children. I don't understand कि like why you don't have the custody, or if you can fight the case of custody. But again, that the court proceedings, वो एक अलग जलालत है। सुबह 8 बजे जाके सिटी कोर्ट में जाके बैठ जाओ। दिस इज़ रियली, इट्स सो सैड। औरतों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मर्द कुछ भी कर दे, औरतों को जला दे, तेज़ाब फेंक दे, मार दे, नहीं, देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, एक इंडियन क्लिप था, आपने अक्सर देखा होगा, वो काउंसिल लेवल पे ख़वातीन होती हैं हु आर डेजिग्नेटेड, और वो उनके पास जो है ना ये मैरिटल इश्यूज़ आते हैं, और वो जिस तरह लताड़ती ना, क्योंकि वो ऑफिसर है, उसके पास पावर है। तो वो एक आया था, वो डिवोर्स देना चाह रहा था, तो उसने सुना दी उसको कि भाई तूने उसकी लाइफ ख़राब की, उसका बच्चा करा दिया, अब उसकी जो है बॉडी भी वीक हो गई है, उसके बच्चा भी आ गया, अब तुम डिवोर्स का क्लंग लगा के तुम दूसरी जगह जाओगे मुंह मारने वगैरह वगैरह करके ना। सो इंटरवेंशन है किसी किस्म की। विमेन हैव सम सॉर्ट ऑफ
कॉन्फिडेंस कि यार मेरा मसला यहाँ हल हो जाएगा। अभी तो आप किसी भी औरत पढ़ी से पढ़ी, अब ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती रही हैं और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अब काम कर रही हैं, सो आई एम अज्यूमिंग शी इज़ अ वेरी वेरी एजुकेटेड लेडी, बट शी हैज़ नो वे टू गो, मतलब पावरलेस है। तो सोचो एक इतनी पढ़ी लिखी औरत और एक पाकिस्तान के बड़े शहर में रहने वाली औरत इतनी पावरलेस है, तो गांव देहात की औरतों के साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे मर्द। और एंड दैट इज़ द पेट्रियार्की दैट दीज फेमिनिस्ट आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट। आप उनको किसी ना किसी एजेंडे के ऊपर और ये लिबरल हैं और ये हैं कह के जो है ना आप हाथ फेर के निकल जाते हो कि नहीं जी इस्लाम में तो बड़े राइट्स हैं औरत को। एग्जैक्टली इस्लाम में राइट्स हैं, पाकिस्तान में राइट्स नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस। पाकिस्तान इज़ नॉट इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, बट इट्स नॉट अ डिपिक्शन ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी। खाली इस्लामिक रिपब्लिक कहने से इस्लामिक रिपब्लिक नहीं हो जाता भाई। लिखने को तो मैं भी हाजी अब्दुल जुनेद लिख दूं, क्या मैं हाजी हो जाऊंगा? मैंने हज जब तक नहीं किया है मैं नहीं लिख सकता। तो ये लेबलिंग के ऊपर मत जाए। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटरवेंशन वी नीड फॉर वीमेन इन आवर कंट्री कि यार उनकी, अब आपके मुल्क की 51% आबादी के कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कुछ भी कर दो, सड़क पे लाते मारो, पुलिस कहेगी जी घर का मामला खुद सॉल्व करें। लिटरली आई एम नॉट इंडोर्सिंग वायलेंस, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जाम्पल। आप घर में अपनी बीवी को मार मार के अधमुआ कर दें, इतना मारें कि पड़ोसियों तक आवाज़ जाए, और जब पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करेगी, पुलिस वाले घर आएंगे, आप दरवाज़ा खोलोगे और बोलेंगे जी हमारे घर का मामला है, और पुलिस बोलेगी येस एब्सोल्युटली ये आपके घर का मामला है, घर में सॉल्व करें। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इंटरवेंशन फ्रॉम द पुलिस, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इंटरवेंशन फ्रॉम द लॉ। आप पिटती जाएं, यू लिव दैट लाइफ ऑफ एन अब्यूज़ एंड देन यू हैव चिल्ड्रन, और फिर बच्चे वो अब्यूज़ देखें, फिर इन टर्न वो बच्चे अब्यूसिव बनेंगे, बड़े होके वो भी ये करेंगे, क्योंकि बाप को हमेशा मारते हुए देखा है तो कभी बीवी का हाथ क्यों पकड़ेगा, वो भी हाथ चलाएगा बीवी पे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ये मसला है। तो हमारे यहाँ तो औरत प्रोटेक्टेड ही नहीं है, मज़हब के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे बस आप दबा देते हो। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि जी बहन के घर पानी पीना हराम है, बहन की जायदाद खा जाते हैं। कैसे दोगले लोग हैं यार हमारे यहाँ। तो वी नीड स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन। अब ये देखें अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून, एक इल्ज़ाम के ऊपर इनको निकाल दिया गया, और हो गया होगा यार शौहर का मूड ख़त्म हो गया होगा, या फिर सास में, नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस, जनरली कुछ होती हैं सासें कि यार भाई नई शादी करो, नया ढोल ढमक्का होगा, नया जहेज आएगा, ये आएगा वो आएगा। कुछ होते हैं इस तरह के ग्रीडी लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आपके बच्चे रोल रहे हैं इसमें, सो आई डोंट नो आपके पास, अच्छा वो आपको कस्टडी भी, ये आई थिंक ये भी होता है कि लाइक इफ़ यू, अगर आप डिवोर्स में रीजनिंग ये दे देना इनफिडेलिटी का, तो फिर वो कस्टडी का केस ख़वातीन की तरफ से वीक हो जाता है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, मगर फिर ये वाला एंगल यूज़ करते हैं ना कि इसका तो कैरेक्टर ख़राब है, मेरे बच्चे ख़राब होंगे, सो द जज इज़ मोर इंक्लाइंड, हाँ नहीं औरत तो ख़राब है, मर्द को दे दो। So just because for the sake of the kids you want to, but that's not a solution. That you've already lived 15 years of abusive marriage, जहाँ पे आपके रिलीजन कह रहा हूँ सॉरी, आपके सेक्ट को भी इज़्ज़त नहीं दी जाती, आपकी मॉर्निंग को भी, आपके ओकेजन्स को भी इज़्ज़त नहीं दी जाती. Why would you want to go there again? And then the whole idea of a family unit is to give the children a peaceful environment, ताकि बच्चे वो peaceful environment देखें, उस अच्छे माहौल में पले बढ़ें, ताकि वो अच्छे इंसान बने. लेकिन फिर जहाँ पे इस तरह की गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और ये होगा, तो ऐसी रिकन्सिलिएशन का क्या फ़ायदा? बच्चे तो फिर भी अब्यूज़ ही हो रहे हैं. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो बच्चे वैसे भी अब्यूज़ अगर होने हैं इस यूनियन के बाद भी, तो वो आपकी एब्सेंस में हो जाए, कम से कम आप तो बच जाएं. अगेन इट साउंड्स वेरी सेल्फिश, but you need to understand where I'm coming from. But again, this is my perspective and this is not an absolute advice. मैंने कभी ये claim नहीं किया कि my advice is this is just my point of view. I understand as a mother आपकी feeling ही different होगी. I'm a new father myself, so I know कि like you know औलाद के आगे इंसान बहुत मजबूर हो जाता है और औलाद बेड़ियाँ बन जाती हैं इंसान की, और वो फिर बहुत बड़े बड़े कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, देयर ऑफस्प्रिंग. आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम, बट देन what purpose would it serve other than the fact that you would be closer to your children? You would still be living in a very abusive life that you don't deserve. And द पार्ट अबाउट योर फैमिली, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता हम लोग ये क्यों
हम हाथ क्यों उठा लेते हैं अपनी बहन भाइयों से? वाई डू वी डू दैट? लाइक अपने बहन भाई, मुझे तो यकीन नहीं आता लोग कैसे करते हैं. लाइक वी माशाल्लाह वी वर हाफ अ डजन सिबलिंग्स. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ लॉट ऑफ लव, वी स्टिल डू. तो कभी सोच भी नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज दे मेड अ डिसीजन इन लाइफ, डिसीजंस कैन बी रॉन्ग. क्या हो गया? आपके हमेशा 100% डिसीजन क्या सही होते हैं? भाई फलानी जगह प्लॉट लिया, डूब गई इन्वेस्टमेंट, तो अब क्या आप बहन भाई छोड़ देंगे इस वजह से? नहीं. सिमिलरली यू इन्वेस्टेड योर इमोशन समवेयर, नहीं चला, क्या गारंटी है शादियों की? कोई गारंटी नहीं है. किसी चीज़ की गारंटी नहीं. अरेंज मैरिज की किसने बोला कि गारंटी 100%? कोई गारंटी नहीं है. पीपल फॉल अपार्ट. तो ये जो हाथ उठा लेते हैं ना अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू. और फिर ये लोग फिर फेसबुक पे आके दूसरों को दीन सिखा रहे होते हैं. अपनी बहनों का इन्होंने ये हाल किया हुआ होता है. इट्स रियली सैड कि ठीक है उन्होंने लव मैरिज की, सुन्नी से कर ली, तो क्या हो गया? या तो आप कहते हो जी एले किताब से भी कर सकते हैं, तो फिर भी सेम किताब है, ठीक है. आई डोंट नो मैन, दैट्स रियली सैड. और उनको क्या, ये आपके जो भी बहन भाई हैं, इनकी ईगो को क्या बूस्ट मिल रहा है आपको सफरिंग में देखते हुए? क्या इनको, इनकी क्या ईगो? क्या हम तो सही कहते थे, ठीक है, ओके यू वर राइट, बट व्हाट अबाउट नाउ? क्या अब मर जाए, क्या करे? ईगो ही नहीं सेटिस्फाई होती लोगों की. ठीक है यू वर राइट कि इसको नहीं करनी चाहिए थी शादी, शादी गलत हो गई, अब क्या करना है? बहन को मरते हुए देखना है सड़क पे, मतलब एड़ियाँ रगड़ते हुए देखना है, पिटते हुए देखना है? मतलब यहाँ पे गैरत नहीं जागती इन लोगों की यार अपनी बहनों के लिए. वैसे तो हम बहनों के मामले में बड़े कंपैशनेट होते हैं, कत्ल करते फिरते हैं हम लोगों के. यहाँ के लोगों को नज़र नहीं आती इतनी बेशर्मी. तो ये जो हम लावारिस छोड़ देते हैं ना औरतों को, कि भाई अब शादी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, कि भाई ये हमने दे दी, अब आप जानो. तो आपने पहले तो उसको 20 साल किसी से मिंगल नहीं करने दिया, कोई उसको आपने एक्सपोजर नहीं दिया कि लाइफ में भाई किस तरह चलना है, क्या ना उसको सही से तालीम दी, ना उसको कभी काम करने, उसको इंडिपेंडेंट नहीं दिया, उसकी थॉट को इंडिपेंडेंट नहीं किया आपने कभी. एंड देन यू लाइक ओके नाउ यूर ऑन योर ओन. अरे ये क्या बकवास है? हाउ कैन वी हैव अ हैप्पी कंट्री जहाँ की 51% आबादी इज़ लिविंग अ मिजरेबल लाइफ? डोंट लुक एट इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे औरतों को देख के आप ये ना समझे कि वो देखें हमारी औरत इंडिपेंडेंट तो है, जीन्स पहन के घूम तो रही है. अबे जीन्स थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है यार, इंडिपेंडेंस यहाँ से होती है, राइट? दे कांट प्रॉपरली मूव अराउंड, दे कांट वर्क, दे कांट बी. इट्स सो मच टैक्सिंग टू बी अ वुमन, लेट अलोन डूइंग एनीथिंग. you're a woman, you're inherently losing so many opportunities just because you're a woman in this country. Sadly, this is a fact. Sexism exists. Women can't do a lot of things. बहुत सारे मसले हैं. सो लाइक हमने जिस तरह इन द गार्ब ऑफ इस्लामिक सोसाइटी हमने जिस तरह एक ये रखा हुआ है ना, दिस इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल माइंड सेट के उन चीज़ों में दबा के कि ताकि औरत का इस्तेहसाल और कर सकें. सो वी कैन एक्सप्लॉइट अ वुमन टू द मैक्स. उसको कोई राइट भी ना दो. अरे निकाह के टाइम पेज ही काट देते हैं, औरत के राइट वाला पेज ही काट देते हैं यार. लाइक कहाँ होता है दुनिया में कि आपका एक राइट ही छीन लिया एट द स्टार्ट ऑफ योर ओन मैरिज? दिस इज सो शिटी मैन. So unless we have some sort of intervention, I'm saying it generally, we need these local bodies जहाँ पे जाके औरतें अपने मसले बता सकें. We need पुलिस की ट्रेनिंग के भाई घर का मामला हो, बाहर का मामला हो, सड़क का हो, पड़ोस का हो, भाई एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, so you need to have an intervention. Why? भाई खुदकुशी पे पुलिस क्यों? आपको पता है अगर आप खुदकुशी करने जाएं and if you fail you get arrested. वाई? स्टेट ने तो लाइफ नहीं दी, राइट? तो स्टेट को क्या है, मैं मरूं जीऊं भाड़ में जाए? नहीं, स्टेट का इंटरेस्ट है आपसे कि आप जितना लंबा जिंदा रहोगे आप टैक्स देते रहोगे. आप 100 का कार्ड डलाओगे 40 रुपये देते रहोगे. आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली, तो स्टेट को आप चाहिए हो क्योंकि आपसे पैसे लेती है, राइट? तो स्टेट को यही सोच कर इंटरवेंशन करनी चाहिए कि यार एक माँ जिसने मुझे आने वाले वक्तों में 3-4 बच्चे देने हैं, मुझे 4 और टैक्स पेयर देने हैं, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूं ताकि मुझे 4 और मिलें, क्योंकि स्टेट तो चलेगी हमसे भाई. स्टेट हमें नहीं चलाती, हम स्टेट को चलाते हैं. तो यही सोच के इंटरवीन कर ले कि यार वो अच्छी रहेगी तो अच्छे बच्चे निकलेंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे तो स्टेट को फ़ायदा देंगे. अब्यूजिव बच्चे निकलेंगे तो वो फिर क्रिमिनल
क्रिमिनल तो बोझ है ना इस स्टेट पे, सिस्टम पे बोझ है, चोरी डकैती करेगा, जेल में जाएगा, दाल रोटी खाएगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? मगर यहाँ कोई इंटरवेंशन नहीं है यार, औरतों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एंड इट्स जस्ट वेरी सैड। यू गाइज नीड टू रियलाइज, कभी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। एंड टू यू मैम, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, मगर यूर साइनिंग अप फॉर द सेम अब्यूज़ जिससे आपकी बड़े मुश्किल से जान छूटी। तो आई वोंट सजेस्ट पर्सनली, बट देन लाइक अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो गाइड अंडर द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डरडा, मैं दुबई में 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। एक बार आपसे लाहौर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। मैं विज़िट पे 2015 में दुबई आया था और छोटी सी जॉब स्टार्ट की। उस विज़िट के दौरान मेरे वालिद, जो कि पहले ही डायबिटिक थे, अचानक बीमार हो गए और उनके दोनों किडनी फेल हो गई। और चूँकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मगर बीमारी के बाद उनके ऑफिस के कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से उनका इलाज CMH में नहीं हो सका। यहाँ दुबई में मुझे विज़िट का 27वें दिन जॉब मिल गई और मैं वापस नहीं जा सका और यहीं जॉब शुरू कर दी। 1 साल बाद घर आया। तब तक फादर का डायलिसिस रेगुलर हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेरी मंगनी मेरी खाला की बेटी से 5 साल रही, जो कुछ बुनियाद पे उन्होंने ख़त्म कर दी। रीज़न के 6 डिजिट सैलरी नहीं थी। मेरी अम्मी ने कहा कि शादी करनी है। उन्होंने मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से की और मैंने बग़ैर कुछ देखे कर ली। वाह यार, अब बग़ैर देखे खाना नहीं खाते कि हड्डी ना आ जाए, बग़ैर देखे शादी कर लेते हैं लोग। चलो कोई मसला नहीं। मेरी शादी के 1 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। सो सैड। इस दौरान मैं 2 बार पाकिस्तान गया, मगर कम छुट्टी की वजह से 15 दिन ही रह सका। मेरी अम्मी की और मेरी वाइफ की नहीं बन सकी, तो मेरी वाइफ अपनी अम्मी के घर चली गई और कहा कि या तो मुझे अपने साथ दुबई रखो या फिर मैं यहीं अपनी अम्मी के यहाँ रहूँगी, विच आई थिंक इज़ प्रीटी फेयर। एक और इस तरह की ईमेल आई हुई थी और उसमें भी लाइक यू नो माई पॉइंट्स ऑफ व्यू इज़ कि लाइक इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड यू हैव नो रीज़न टू बी विद द पेरेंट्स। आई मीन इट डजंट मेक सेंस। इस वजह से मैंने वाइफ को दुबई भी बुला लिया और अम्मी भी कहती थी कि इसको साथ रखो। ठीक है, अच्छी बात है, साथ रहना चाहिए। मेरी अब एक बड़ी बेटी है 3 ईयर्स की और 2 ट्विन्स हैं 1-1 साल के, माशाल्लाह। मेरी वाइफ के दुबई आने पर मेरी अम्मी ने पाकिस्तान में शादी कर ली। पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैंने करनी है। मैंने कहा आपका हक है और आप कर लो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड इसमें ना मैं सोच रहा हूँ काफ़ी अर्से से मैं एक वीडियो बनाऊँ दैट वी हैव टू नॉर्मलाइज रीमैरिंग ऑफ elder women, and not just elder women, I mean divorcees and widows, right? Because यार हम लोग अजीब वही वाले कल्चर के गार्ड में रह के वी टेक सो मच फ्रॉम दीज women. I know so many women who have lived longer as a widow than they did as a wife. Like शादी 20 साल और बेवा 40 साल रही. Like they spend more time. And that's so sad. Like मेरी अपनी फैमिली में like I'm 37 और मैंने अंकल को नहीं देखा था, तो यानी मुझसे पहले के वो वफात पाए हुए थे। तो मैं और उनकी शादी 20-22 साल चली और फिर उनकी डेथ हो गई थी, बच्चे छोटे छोटे थे। तो 20-22 साल सिर्फ वो उनको वाइफ, और अगली ज़िंदगी के 40 साल शी लिव्ड एज अ विडो। इट्स जस्ट वेरी सैड। हम ये समझते हैं कि शादी का काम, मतलब हम समझते हैं कि जी छिछोरे हैं, शादी क्यों कर रहे हैं, तो मतलब 20 में करना सही है और 40, 50, 60 में छिछोरे हो जाते हैं। वाई यार, हमें समझना चाहिए कि शादी ना, अच्छा फिर उसको लोग उस बेशर्मी का गार्ब रख के कहते हैं कि जी बड़ी गर्मी चढ़ी हुई थी, क्योंकि शादी से वही वाली बात ना, हम शादी को सिर्फ समझते हैं कि ये फ्री सेक्स है। फ्री वो भी नहीं होता, प्रीपेड और पोस्ट पेड वाली बात है ना। अगर आप बाहर कहीं मुंह मारें पैसे देके, तो वहाँ पहले पैसे देना, यहाँ पे पैसे साथ साथ जाते रहते हैं। तो हमने तो शादी को सेक्स बनाया हुआ है बेसिकली। घर तो हम बनाते नहीं हैं, तो हम फिर किसी की री मैरिज को उसी तरह देखते कि उसको बड़ी आग लगी हुई थी। यार इंसान की इमोशनल नीड्स भी होती हैं, सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं होती। अब आप में से जो भी लोग मैरिड हैं, अपने आप से सवाल पूछें कि नो मैटर हाउ मच क्लोजर यू आर टू योर ओन सिबलिंग्स, आप अपने बहन भाई को हर चीज़ नहीं बताते, आप अपनी औलाद को हर चीज़ नहीं बताते, आप अपने माँ बाप से भी हर चीज़ नहीं बताते, लेकिन आप अपने स्पाउस से तकरीबन हर चीज़ शेयर कर लेते हैं। तकरीबन आई थिंक योर स्पाउस इज़ द पर्सन हु नोज द मोस्ट अबाउट यू, जो आपकी वल्नरेबिलिटीज जिसको पता होती है। वाई? बिकॉज यू कंफर्टेबल, बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर पार्टनर, राइट? एंड यू वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर,
विच इज़ वाई यू शेयर दीज इनसिक्योरिटीज़ एंड वल्नरेबिलिटीज़, ताकि फिर आप एक दूसरे को हिम्मत बन सकें और फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें. दैट्स द होल आइडिया ऑफ अ पार्टनरशिप, राइट? तो यही चीज़ क्या 40 साल वाली औरत को नहीं चाहिए? जिसको डिवोर्स हो गई, क्या उसको दोबारा नहीं चाहिए? हम लोग समझते हैं जी एक चांस मिलता है लाइफ में, हो गया, चल गया, सही है, नहीं चला, ओके, नाउ यूर अ फेल. आई नो पीपल हु गॉट विडोड एट द एज ऑफ 22, और भाई सोसाइटी ने हाथ उठा लिए कि भाई ये तो कातिल है, छोड़ो, करना ही नहीं इसका. क्यों भाई? उसकी गलती थोड़ी थी. अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका क्या लेना देना? लेकिन भाई यू गॉट वन चांस, मतलब योलो करते ना, यू ओनली लिव वंस. नहीं भाई, दोबारा करो, नहीं चले तीसरी बार करो, नहीं चले चौथी बार करो, क्या मसला है? कीप ट्राइंग मैन. नौकरी भी तो करते हो ना, नहीं समझ आई दूसरी कर ली, नहीं समझ आई क्या, या फिर बस हाथ पे हाथ रखे यार मे बी इट्स नॉट फॉर मी, नहीं, राइट? तो वो आप फाइनेंशियल करेंसी के लिए तो जॉब चेंज करते रहते हो ना, तो इमोशंस भी तो एक करेंसी है, फिजिकल बॉन्ड भी तो एक करेंसी है जो इंसान की ज़रूरत है भाई. तो हम क्यों डिप्राइव करते हैं अपने औरतों को? अच्छा, मर्द कर ले, कोई मसला नहीं है, मर्द कर ले, 60 पे भी कर ले, 65 पे भी कर ले, वो तो कहते हैं माशाल्लाह ये जवान, ये अभी तक पट्टे हैं इसके, चल रहे हैं ज़बरदस्त यार, उसको वाह वाह करते. औरत कर ले तो वो बद किरदार हो जाती है कि इसको बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी. इट्स सो सैड. सो वी नीड टू नॉर्मलाइज री मैरिंग. अब बोलोगे अपनी माँ की करा दो, भाई मेरा बाप जिंदा है, क्या क्यों कराऊँ मैं, राइट? तो ये आप ना इस तरह ज़रा सोचें, इस तरह कि यार इंसान की इमोशनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, और जायज़ नीड्स हैं यार, जायज़ नीड्स हैं. वाई वुड यू डिप्राइव? और इसी तरह का बिहेवियर जो है ना फिर गुनाह का रास्ता आसान करता है. हमने शादी इतनी मुश्किल की है, पहली ही इतनी मुश्किल की है, दूसरी का तो सवाल ही नहीं होता. तो फिर इंसान के पास क्या ऑप्शन है, राइट? इफ समबडी गॉट डिवोर्स and the society is not accepting her, she wants to remarry, she wants to settle down, she wants to raise a family, but society ने ऐसे नॉर्म्स बना दिए कि जी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके पास फिर क्या, टेंडर पे जाएगी, फिर वो कैजुअल सेक्स भी करेगी. इंसान की नीड है, राइट? सती सावित्री बन के जी सफ़ेद साड़ी ओढ़ के सारी ज़िंदगी कौन गुजारता है यार? कोई नहीं गुजारता. तो हमारा बिहेवियर जो है ना एज अ सोसाइटी, एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी, हमारा बिहेवियर इन गुनाहों को प्रोपगेट करता है. अगर हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लें, ये सोच के कि यार अगला भी इंसान है, उसकी भी नीड्स हैं, बात ही ख़त्म. लेकिन हमने जो हाइपर रिलीजियोसिटी, वो अगेन वही वाली बात. इस्लाम में अलाउ है, देयर आर काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, राइट? यू कैन री मैरी, नथिंग रॉन्ग. मगर हमने कल्चरली जो है ना, कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर दिया हमने कि जी चूँकि बिकॉज वी लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट कल्चर, और सती कर देते थे औरतों को, मतलब अगर शौहर मर गया तो औरत भी चिता में डाल दी. दिस यूज्ड टू बी अ कॉमन प्रैक्टिस अप अंटिल लाइक 150 ईयर्स अगो, राइट? तो हमने भी यही बना लिया कि जी अब औरत की भी ज़िंदगी ख़त्म, उसका बाद नसीब ये था. नहीं, तुम कौन होते हो बताने वाले उसका नसीब ये था? आर यू गॉड? आप अल्लाह हो क्या? आपको कैसे पता कि उसका क्या नसीब था? तो आपकी थर्ड क्लास सोच की वजह से ये गुनाहों के रास्ते आसान हो रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट. एनीवे, अच्छा, तो मगर उन्होंने बताया नहीं. अच्छा, उन्होंने जिक्र किया कि वो करना चाहती हैं, मगर उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने एक 21 साल के रिक्शा चलाने वाले से शादी कर ली, और वो अकेला है और उसके माँ बाप भी नहीं हैं, बहुत गरीब है, तो मैं उसका और मेरा सहारा बन जाएंगे. अच्छा, मैंने उनको बहुत रोका, मगर उन्होंने कोर्ट में जाके शादी कर ली. शादी के बाद मैं चुप हो गया और अम्मी की हाँ में हाँ मिला दी. वो लड़का मुझसे 9 साल छोटा है, तो यानी इसके स्टेप फादर उससे 9 साल छोटे हैं, और गलियों में बैठने वाला, सिगरेट पीने वाला और अपने पास पिस्तौल रखने वाला है. तो कोई क्रिमिनल टाइप का मिल गया कोई. समझ नहीं आती अम्मी कैसे उसके जाल में फंस गई, हालांकि वो ग्रेजुएटेड हैं. उनकी तब से लेकर अब तक सब खर्चा मैं भेजता हूँ, जिसमें वो लड़का भी खा पी, मतलब अच्छा स्टेप फादर भी यही पाल रहा है. दैट्स सो सैड. मेरी वाइफ और बहन ने बताया कि उसने मेरी अम्मी को मारना पीटना शुरू कर दिया है और बहुत गंदी गालियाँ देता है. बहुत मनाने के बाद मैंने अम्मी को मनाया कि आप उसको छोड़ दें. अम्मी मान गई. हमने खुला का केस भी किया, मगर दोनों बार अम्मी ने जज के सामने जाकर सुलह कर ली. ओके,
ये तो फिर अम्मी की टॉक्सिसिटी है। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वकील के पैसे भी गए। अब वो परेशान भी रहती हैं और मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। उनका सिला मैं नहीं दे सकता मगर मैं उस लड़के से बहुत नफ़रत करता हूँ। ठीक है, मेक सेंस। मेरी वाइफ और बच्चे अब मेरे साथ दुबई में हैं। कैसे भी करके उनका खर्चा कर रहा हूँ। कोविड की वजह से जॉब ख़त्म होने के दर पे है, अल्लाह रहम करे। सारी जमा पूंजी एक स्टार्टअप बिजनेस में लगा चुका हूँ। अब अम्मी के पास ये जवाज़ है कि मैं अकेली हूँ यहाँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। अच्छा, ओके। मुझे भी लगने लगा है कि सब मेरी गलती है। मैं पाकिस्तान में रहता तो उनके सामने वो शादी ना करती। मैं अपने वालिद के जनाजे में भी नहीं पहुंच सका। अब आप बताएं कि मैं सही सोच रहा हूँ। बहुत दफ़ा उनसे बदतमीज़ी कर देता हूँ। उनके रवैये मुझे समझ नहीं आता। कभी प्यार का मैसेज करती हैं और कभी गुस्से का। मैं ज़ाहिरी बहुत खुश हूँ। सब काम कर रहा हूँ। घर भी है यहाँ, घर भी अच्छा वाइफ भी है, मगर मुझे लगता है कि सब फेक कर रहा हूँ। अंदर से खुशी नहीं है अम्मी की वजह से। अब मैं क्या करूँ? क्या वापस पाकिस्तान जाकर उनका ख्याल रखूँ? पर फिर काम कौन करेगा वहाँ, और दुबई में जो स्टार्टअप है उसका क्या होगा? नंबर 2, क्या वाइफ बच्चों को घर भेज दूँ मगर उनके वीज़ा वगैरह और यहाँ वगैरह का बहुत ख़र्चा हो चुका है, उसका क्या होगा? या कुछ ना सोचूं उनके बारे में और मेरे खान मारे खान उनको मारे खाने दूं दिन रात, पैसे भी भेजता रहूं? प्लीज़ हेल्प, कुछ बताएं। सॉरी फॉर लॉन्ग ईमेल। अच्छा, ऊपर वाली तो पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। आप ज़ाहिर है आपसे उम्र के 9 साल छोटा बच्चा आपकी माँ को मारे, कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। बाप भी मारता था तो बहुत सही आता था, वो बाप था तो आप कंट्रोल करते थे। अगेन वही वाली बात जैसे मैंने की ना, इंसान की अपनी नीड्स होती हैं। अब वो उन्होंने उसमें क्या देखा या उसने कैसे जाल में फंसाया वगैरह वगैरह, वो एक अलग डिबेट है। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि भाई अब मुझे कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, राइट? तो मुझे वही मिलेगा। और फिर ऐसी सिचुएशन में फिर मिलता भी वैसा ही है जो कि जिसका कोई मोटिव हो। अब इसका क्लियरली मोटिव होगा घर बैठ के खाऊंगा, दुबई से लड़का पैसे भेजता रहेगा, तो मैंने तो गली में बैठ के सिगरेटें ही पीनी है। ऐसे वाले ज़्यादा मिलते हैं। वाई? वही वाली बात, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी या सेटल्ड आदमी कभी भी नहीं ऑप्ट करेगा ना, क्योंकि उसको तो मिल जाएंगी 19-19 साल की लड़कियां। वो क्यों जाए किसी बेवा के पास जिसके बड़े बड़े बच्चे हों, जो दादी हो, राइट? तो बिकॉज सोसाइटी की थिंकिंग वो है, सो शी हैड टू ऑप्ट दिस गाय, राइट? डीप डाउन उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा यार, इस उम्र में कौन, लाइक वो दादी हैं यार, दादियों को ठीक है जवानी में लोग मार खा लेते हैं, मतलब ज़ाहिर है लोग इनरेज्ड होते हैं, इमोशंस हाई होते हैं, मगर बुढ़ापे में कौन मार खाता है भाई? किसको पसंद है? किसी को भी नहीं पसंद। बट बिकॉज सोसाइटी का ये बिहेवियर है कि यार और कोई मिलना नहीं है और मुझे सहारा भी चाहिए, मैं अकेली हूँ। वही वाली बात ना, जैसे मैंने कहा, इंसान अकेला होता है यार, इंसान को बात करने वाला चाहिए होता है, बात करने वाले नहीं मिलते लोग। तो अब वो ज़ाहिर है स्वॉट एनालिसिस करके कि चलो ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे एक सहारा तो होता है। फिर हमारे यहाँ ये भी थिंकिंग है कि जी अकेली औरत जो रहती है वो वल्नरेबल होती है, तो कुछ नहीं, अगर ये सोच है हमारे यहाँ की कि मर्द की जूती भी बाहर पड़ी हो ना बाहर, तो लोग 10 बार सोचते हैं। अगर मर्द की जूती बाहर पड़ी हो ना दरवाजे के, तो कोई नहीं आता, कहता है भाई अंदर कोई है, ठीक है ना, फ्रॉम द प्रोटेक्शन परस्पेक्टिव। तो वो भी एक फैक्टर लोग इस तरह सोचते हैं। वो ना भी फैक्टर हो, अकेलापन इंसान को खा जाता है। अब भाई आपने ज़ाहिर है देखो वही वाली है ना, ये कैच-22 सिचुएशन होती है। लोग पेरेंट्स और अपनी औलाद के बीच में पिस जाते हैं और फिर ना वो अच्छा हो पाता है ना ये अच्छा हो पाता है, फिर सब बर्बाद हो जाता है। यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। देखें वो बच्ची तो नहीं है आपकी वालदा, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया कॉन्शियस डिसीजन लिया, और फिर खुला भी हुआ और फिर वहाँ जाके सुलह भी खुद कर रही हैं, तो फिर उनका डिसीजन है ना। देन यू कैन ओनली डू सो मच। आपने अपनी औलाद का सोचना है। अब ज़ाहिर है इतना पैसा लगा के, देखें हालात वैसे ही ख़राब हैं, कोविड है, यहाँ क्या करोगे वापस आके? अब ये आप छोड़ दो कि जी मैं यहाँ होता तो माँ के सामने होता, बाप का जनाजा होता, ठीक है होते और अच्छा होता, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पास्ट में ना रहने से डिप्रेशन होता है। तो पास्ट से आप एक चीज़ कर सकते हो, आप सीख सकते हो और उसको आगे अप्लाई कर सकते हो।
पास्ट में बार बार जाओगे, सारी ये चीज़ें कुरेदोगे और दुख होगा और गम होगा, तो ये ना करो, ठीक है। वापस आना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपने वहाँ पे स्टार्टअप में पैसा लगाया हुआ है, बीवी बच्चों को रखना दुबई में आसान नहीं है, माशाल्लाह आपने 3 बच्चों को वहाँ रखा हुआ है, सो यू मस्ट बी डूइंग वेल इनफ। अब ये कि जी मैं इधर से बैठ के उनको पैसे भेजता रहूँ, आप उसको नहीं भेज रहे, आप तो अपनी माँ को भेज रहे हो, ठीक है। अब माँ के साथ वो लगा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। रह दे के 2 रोटी ही खाता होगा ना, वो खा ले, अल्लाह के नाम पे ज़कात समझ के ही कर लो उसके लिए, ठीक है ना। ज़ाहिर है किसी का भी नहीं दिल करता ही सोच के, अगर तो ये हो सके आप माँ को वहाँ ला सके दुबई में। आई नो इट्स नॉट ईजी, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि वो डिस्करेज करते हैं ओल्डर लोगों को वीज़ा देना, तो आई डोंट नो वो क्या सिचुएशन है। अगर वो हो सके तो उनसे जान छुड़ा के अपने पास रख लें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि एक इंसान को मूव करना। अब यहाँ से जो आप कह रहे हो मैं बीवी बच्चों को वहाँ भेज दूँ, उनका क्या कसूर है? उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ मिला हुआ है, क्यों उनको यहाँ डिप्रेशन में भेजोगे भाई? फिर वो आपसे भी दूर हो जाएंगे। बच्चे सामने बड़े होने चाहिए, व्हेन यू कैन अफोर्ड तो बच्चे सामने रखो, फिर बीवी भी सामने रखो भाई, ज़रूर है, आपके लिए भी ज़रूरी है ना। उसका क्या कसूर है? जस्ट बिकॉज वो सुट्टे मारने वाला गन कर रहा है, आप अपने बीवी बच्चों को अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो? उनका क्या कसूर है इसमें? सो डोंट डू दैट। बीवी बच्चों को साथ रखो इफ़ यू कैन अफोर्ड, अच्छी बात है भाई, सामने होने चाहिए, औलाद सामने बड़ी होनी चाहिए, नज़रों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनको ये आप वो ना, बिल्कुल भी ना करें। ये तो मैं ऑप्शन कभी भी नहीं बोलूँगा कि जी उनको वापस भेज दें, और ख़ुद भी वापस ना आए भाई, अपना आप देखें, ठीक है। अब वो उनका डिसीजन है, अब यू कांट रियली डू मच अबाउट दैट। वो आपकी वालदा हैं, और वो अब दादी की उम्र क्या, दादी हैं वो, राइट। सो उनको खुद सोचना चाहिए उनके लिए क्या बेहतर है। तो अब ये एक कड़वा घूंट है, अब आप ये इसको पीना पड़ेगा। अपनी फैमिली, अपने बच्चों का सोचें, दे आर योर फ्यूचर। जस्ट बिकॉज वहाँ पे रिजेंटमेंट है, यहाँ पे आप क्यों डेवलप होने दे रहे हो? तो आप ये उससे ये सीखो कि यार ये चीज़ खुदा ना करे यहाँ पे इस तरह की कोई रिजेंटमेंट ना हो, मेरी औलाद की मेरी बीवी से, यानी अपनी माँ से, किसी भी मामले में, या अपने बाप से यानी आप से। तो उनको साथ रखें, कीप देम क्लोजर टुगेदर, वर्क हार्ड। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे याद है मेरी आपसे मुलाकात हुई थी 2015 में लाहौर एयरपोर्ट पे। सो यूर अ गुड गाय, अपना ख्याल रखें, हिम्मत नहीं हारें, दुआ करें, और उनकी सुकून के लिए दुआ करें। अगेन इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका हक़ था जो उन्होंने किया, शी री मैरिड, उनका राइट है, इंसान को ज़रूरत होती है। और आप बुरा ना सोचें कि जी आप जनाजे में नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। यू वर देयर फॉर अ ग्रेटर कॉज, जिसकी वजह से आज आपके अपने बीवी बच्चे जो है एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो आपकी मेहनत थी, एंड माशाल्लाह यू हैव डन अ लॉट इन 5 years मैन, दैट्स रियली गुड। सो दैट गोज़ टू शो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। 5 साल में आपने 4 लोग मूव कर लिए अपने साथ, दैट्स रियली गुड। तो कीप अप द गुड वर्क, हिम्मत ना हारें, और अपना काम जारी रखें, और अपने काम पे, अपनी फैमिली पे फोकस करें, और दुआ करें अपनी वालदा के लिए। थैंक यू। Hi everyone. Assalamu alaikum. My husband lives abroad and he's not talking to me properly because he wants to live with his parents. Okay. He wants me to live with his parents. Okay. His mother is so much controlling, and now within 15 days of my stay, she just gossiped about me to my husband and told me that इसको ना पहनने से मतलब है ना ओढ़ने से, ये तो नंगी भी रह लेगी in front of almost 10 people. To which my husband replied, कुछ किया होगा इसीलिए बोला होगा, सिर्फ बोला है, नंगा करके तो नहीं भेजा ना। I left the house and told him I will not live there in his absence. What should I do? My heart is broken because of his reply. Should I leave him? Okay, leave him is like quite stronger notion right now. That's not a nice thing to say. First of all, मैंने शुरू में email में भी कहा कि I don't see the point of a wife living with parents जब husband abroad है। भाई शादी हस्बैंड के लिए होती है, माँ बाप की खिदमत के लिए थोड़ी होती है, ठीक है। हस्बैंड के लिए होती है शादी। अब हस्बैंड ही नहीं है, सो लाइक आई डोंट सी द पॉइंट। हाँ, मोहब्बत में आप कभी कभी रह लें, थोड़ा अर्सा रह लें, बट प्राइमरीली इफ ही इज नॉट देयर, देयर इज नो, आई डोंट नो मैन, लाइक मुझे नहीं पर्सनली, मुझे नहीं समझ आता ये। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वाज अ वुमन एंड माय हस्बैंड वाज लिविंग अब्रॉड, मैं क्यों उस घर में जाके रहूं जहां मैं, जिसके लिए मैं उस घर पे आई हूं वही नहीं है, तो मेरा क्या काम? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो मुझे समझ नहीं आता। और फिर वही होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर जाहिर है यू आर ऑल्सो पेंटिंग अप फ्रस्ट्रेशंस बिकॉज ही इज नॉट अराउंड, ठीक है ना। जाहिर है आपको आपका स्पाउस नहीं मिलता, तो
naturally you grow a lot of frustration. और फिर लाइक ये सासें, ये गॉसिपी सासें, अल्लाह माफ़ करे यार, ये फारिग औरतों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लाइक रियली, लाइक घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है। हर घर की कहानी है। लाइक मेरा भरा हुआ है 4710 ईमेल्स अभी और है। मैं कितनी तो फारिग कर चुका हूँ ईमेल्स, लाइक पढ़ के जवाब देके। अभी भी 4700 भरा हुआ है सासों की ईमेल से। अब इसे बोले कि जी उनकी भी साइड सुन लें। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक कहीं कहीं बहू भी गलत नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, बट यार ये फिल्म, ये बिला वजह का अब्यूज यार, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, ये सिस्टम ही नहीं समझ आता है। शादी की है तो साथ रखो और अलग रखो यार, बात ही खत्म। ठीक है सलाम। आर्नो मैन, वरना फिर ये होता है पहनने की तमीज, घर में नंगी फिरेगी। अब क्या हुआ होगा, आप टी शर्ट पहन के घूम रही होगी घर में, उनको बंदा अपने घर में रिलैक्स नहीं करेगा तो कहाँ करेगा भाई। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, नंगा क्यों बोला है, दुपट्टा नहीं लिया हुआ होगा आपने। अगेन घर में सास ससुर ही है, अगर चलो ससुर के सामने समझ आता है, अगर सास ही है मतलब काम वाम कर रहा है, आई डोंट नो मैन, ये बहुत ट्रिवियल लेवल के इश्यूज हैं यार, ये कोई इश्यूज ही नहीं है यार, और ये इश्यूज है हमारे लोगों के। एंड इट इज जस्ट वेरी सैड कि यू गेट वन लाइफ एंड यू हैव 42,000 एंसेस्टर्स above you, like अम्मी अब्बू 2 हो गए, फिर उनके अम्मी अब्बू, उनके अम्मी अब्बू 4, 42,000, and they sacrifice so much so that you can live today, and these are your problems. It's shameful man, like, और ये जो होता है ना, ये काके अम्मी मामा's boy, like learn to take a stand for your wife for a fucking change man, like क्या बकवास है। हाँ कुछ कहा ही होगा और ये ही होगा, ये जो है ना। अब like when I was living abroad, I would call my mom once a month, only once a month. I could have called her every day, but I chose to call her once a month. Not that I didn't love her, it's just कि like ठीक है रस्मी बातें, ये वो रोजाना की बात। एक तो ये जब से व्हाट्सएप कॉल फ्री हुई है ना, ट्रिगर हैप्पी मिला दिया, हर बात पे मिला दिया। देखो उसने ये बोला है, पहले तो पैसे लगते थे ना, लोग ही फटती थी कि बाहर जाके पीसीओ से फोन करना पड़ता था, कार्ड डालना पड़ता था, टेली कार्ड का कार्ड, और जल्दी बात कर रहे, टाइम बम की तरह चल रहा है। अब तो फ्री कॉल है, मिला के लगे पड़े। इसने ये बोल दिया, अगले फिर वो भी अच्छा हाँ ठीक है मामाज बॉय बने हुए। भाई अगर नहीं बैलेंस करना था शादी नहीं किया करो यार, वो तो समझ नहीं आती क्या है यार लोगों को। यू डिड द राइट थिंग, ठीक है। आप इफ यू आर नॉट वेलकम इन अ हाउस, इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, देन देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू बी देयर। आई मीन आई डोंट सी द पॉइंट। रोल रिवर्स करके देख लें, मर्द हजरात जो सुन रहे हैं, आपके साथ इस तरह हो, ठीक है ना, यू आर फोर्स्ड टू लीव योर हाउस एंड देन फॉर दैट पर्सन जिसके लिए घर छोड़ा है वही नहीं है वहाँ पे, और फिर आपको इस तरह की रोज ताने सुनने को मिले, यू वोंट टॉलरेट इट। अब इसको बोलेंगे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, आजकल की औरतें जबान चलाती हैं, ये वो। इसको जबान चलाना नहीं कहते यार, ये अपने हक के लिए बात करना, जबान चलाना, यही अगेन पेट्रियार्की, दिस इज द प्रॉब्लम कि जी हमने अपने हक मांगने को बदतमीजी कह दिया। अगर आप अपने पेरेंट्स से बोले नहीं अब्बू मुझे ये नहीं ये करना है, आप बदतमीज औलाद हो जाते हो। अबे भाई मैं अपना राइट मांग रहा हूं, ये बदतमीजी। इसी तरह औरत अगर अपना बोले कि भाई आई फील डिसरिस्पेक्टेड इन दिस हाउस, वो ये जबान चलाती है। अबे तो भाई और क्या बोले वो, अजीब है। शुड आई लीव हिम, तो लाइक आई डोंट नो मैन, ये तो खैर इतनी सी बात पे लीव हिम भी नहीं करना चाहिए। लाइक टॉक टू हिम, उनको बताया कि भाई ये बात है और कभी मेरी भी साइड लें। लाइक लोगों को बैलेंस नहीं करना आता, मसला सारा ये। कुछ होते हैं मामास बॉय, माँ में ही घुसे रहते हैं, बीवी लाके भी माँ में ही घुसे रहते हैं। कुछ होते हैं बीवी के आते ही बीवी में ही घुसे रहते हैं, फिर रिजेंटमेंट्स बढ़ती हैं, या तो यहाँ से बढ़ती हैं यहाँ से बढ़ती हैं। बैलेंस ही नहीं करना आता। stand for your right and like stand for what is right. Wherever your mom is wrong, call her out, learn to call her out कि ठीक है आप मेरी माँ है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ वगैरह वगैरह, मगर दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, आप ऐसे ना करें। और बीवी को भी बोलें कि ठीक है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन वगैरह वगैरह, मगर दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, थोड़ा सा यहाँ पे आप करें। ये जो कान भरने वाली चीजें होती है ना, यहाँ पे भी मैंने देखा है अमंग माई फ्रेंड्स। काम पे गए, मैं पीछे से माँ अलग फोन कर रही है, बीवी अलग फोन कर रही है, बंदा बैठा है यार, फटी पड़ी है, नौकरियां नहीं है, सैलरी 30% माइनस हो गई है, काम पे लगे हुए, अगर अच्छा काम नहीं किया नौकरी से गए, कोविड के टाइम में नौकरी नहीं मिलनी। इधर से माँ फोन करिए, तुम्हारी बेगम ने मेरे को ये बोला, उधर से वो कह रही तुम्हारी माँ ने मुझे ये बोलो। कह रहे यार मैं काम कर लूँ, मैं सेल्स रिपोर्ट बना लूँ, सेल्स टारगेट मीट कर लूँ, या मैं ये कर लूँ। मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल। बंदे को भी मिजरेबल किया, मैं खुद भी हुई होगी। फरागत है और कुछ नहीं है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ फरागत है। इनको फैक्ट्रियों में लगाओ कि भाई सीओ
कपड़े सियो, बांग्लादेश की औरतों की तरह कपड़े सियो धड़ाधड़, तब इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ये फरागत है, एक कमाने वाला 10 खाने वाले 3 भी कम गया हूँ, ठीक है ना। तो घर बैठ के खाली दिमाग या तो यार साबिर शाकिर सुन लेंगे, या निदा यासिर सुन लेंगे, या ये जलन नंद ये कर लेंगे, या फिर लड़ लेंगे। यही कर रहे हैं लोग। और क्या कर रहे हैं मुझे पता है। एक आम हाउस होल्ड में हो क्या रहा है, कोई प्रोग्रेस की बात हो रही है, कोई काम की बात, कोई प्लानिंग हो रही है, बच्चा होगा, बच्चे को हमने इस तरह करना है, कोई ऐसी बात हो रही है। जनरली स्पीकिंग, कुछ मैं नहीं कर रहा, सारे ऐसे। अबे भाई कुछ है ही नहीं, कोई प्रोडक्टिव बात ही नहीं करने वाला, सुनने को ही नहीं मिलती यार। टीवी पे देखो ना, अजीब चल रहा है हिसाब किताब, ड्रामों ने दिमाग खराब किया हुआ लोगों का। 20 साल से औरत को रुला रहे, तो आपके एक मेंटल मैपिंग होगी कि यार औरत को ऐसे ट्रीट करना है, नहीं तो ऐसी हो जाएगी, नहीं तो शहवार क्या ऐसे हस्बैंड रहो, डोमिनेटिंग रहो, वरना शहवार था क्या था, शहवार के साथ शलवार उतार देगी वो, हैं। यही सिखाया है कि ये कर लो वरना ये हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे दोनों। अरे यार प्यार से बेड़ा गर्क किया हुआ लोगों के दिमाग का। तो मैं तो यार मैं डिप्रेशन में चला गया चीजें पढ़ के कि किस लेवल के। 2021 आ गया यार, 20 भी गया, नई डेकेड शुरू हो गई है। ये 1970 के मसले हैं, ये मसले ही नहीं है आज की जिंदगी। लेकिन अजीब मर्द ही अजीब, हमारे इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। इसलिए कहते हैं को एजुकेशन जरूरी है कि भाई इनको अंडरस्टैंड करना है कि भाई एक औरत भी इंसान होती है, उसकी भी कुछ नीड्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उसके साथ बिहेव कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है। ये सारी जिंदगी बॉयज स्कूल में सारे लड़के तो एकदम लड़की पकड़ा दी, वो समझ ही नहीं आ रहा, पोर्न देखी वैसे ही करना है, वैसा नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। अजीब पागल, डील ही नहीं करना आता औरतों से, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में यार, औरत से बात ही नहीं करने आती, हाथ कब आ रहे होते लोगों के। कभी देखिएगा ये जो खवातीन है वो उनसे पूछिएगा अपनी जो वर्किंग वुमेन है कि उनके कॉलीग्स कैसे बिहेव कर रहे होते हैं उनके आगे पीछे। अबे आउट हुए हुए होते हैं, हाथ कब आ रहे होते हैं, क्योंकि कभी डील ही नहीं करना आया। उस बंदे को आपने पकड़ा दी औरत, ये ले शादी हो गई तेरी, अबे वो क्या डील करेगा, उसको पता ही नहीं है, उसने कभी जिंदगी में बैलेंस ही नहीं करना सीखा, वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं सीखा, कि दोस्तों में, खेल कूद में, जॉब में, पढ़ाई में कैसे बैलेंस रखना वो ही नहीं सीखा। उसको आपने औरत पकड़ा दी, ये ले बैलेंस कर, वो बैलेंस ही डलवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अबे बहुत बेसिक भैंड की आंख, इस मुल्क में शादियां करना सबको आती हैं, शादियां करा लो, इनसे नचवा लो। कोविड में नाच रहे माँ की आंख, कुत्ते की तरह नाच रहे। अबे भरा पड़ा है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जैसे कोविड है ही नहीं। कोविड बाहर बैठा, कोविड बाहर बैठा, खाना कब खुलेगा, कोरमा खाऊं मैं भैंड की आंख इनकी शादियों का। अबे शादियां करा लो इनसे। शादी चलाने कैसी है किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ना कोई सिखा रहा है ना कोई समझा रहा है। ड्रामों में कुछ और दिखा रहे हैं, मॉर्निंग शो में कुछ और दिखा रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों के, जहालत और प्रोपेगेट हो रही है। नोबडी इज देयर, कोई काउंसलिंग ही नहीं है। और काउंसलर के पास चले गए, ये तो बावले हो गए, पागल हो गए। कोई सेक्स थेरेपी नहीं है, ये भी एक थेरेपी है भाई। सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं दुनिया में जो समझाते हैं कि भाई अपने अपनी इंटीमेसी लेवल को। अबे लॉन्जरे स्टोर नहीं इस मुल्क में, मेरा तो ख्वाब है लॉन्जरे स्टोर खोलने का। कोई सुन रहे तो आए मेरे साथ पार्टनरशिप करे भाई। लॉन्जरे स्टोर स्पाइस अप योर मैरिज। देखिए 90% पाकिस्तान में लोगों की एक ही बार शादी होती है, ऐसा ही है भाई, एक ही बार होती है। अब जिससे हो गई, अब अगले 40 साल यही है, अब यही है, बीवी भी वही है, हस्बैंड भी वही है। अब क्या करना है, कब तक पंखे को देखना है भाई। लॉन्जरे स्टोर खोलो। अबे सऊदी अरब में विक्टोरिया सीक्रेट है यार, सऊदी अरब में, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार हमने, वो तुम्हें शादियां भी मल्टीपल करते हैं ना, क्योंकि वो फिर वो बोर्डम वाला एलिमेंट लेकर आते हैं। एंड देन विमेन देयर आर लाइक, जाहिर उनको इनसिक्योरिटी होगी, यार मैंने खुश नहीं रखा तो 27वीं नंबर के पास चला जाएगा, तो है भी इतने महल इतने सारे होते हैं उनके, राइट। सो दे प्रोबब्ली स्पाइस अप फॉर दैट, बट अगेन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यार ये भी देखिए, इंटीमेसी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मैरिज, राइट। अगर आपने उसी को ही बोरिंग रख दिया तो फिर बचा क्या। तो मैं तो फुल मूड में हूं भाई, लॉन्जरे स्टोर खोलूं। अब आप इसको फतवे लगाएं, कुछ भी लगाएं, अरे भाई ये तो मैं शादियां अच्छी करने वाली है, उसको लोग मजाक समझेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू आर ड्रेसिंग अप फॉर योर हस्बैंड, यू आर ड्रेसिंग अप फॉर योर वाइफ, पान वाले को थोड़ी लॉन्जरे पहन के दिखा रहे, लिंगरी ये ले, लेसी काली वाली देख ले भाई, शौर कोई दिखानी है ना। तो इसमें शर्म हकारत क्या है, हिमाकत, पता है, अजीब अजीब यार। अबे भाई कोई काउंसलिंग नहीं है कि शादी रखनी कैसे,
चलानी कैसे, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ बहुत बिकॉज आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट कॉमन सेंस तो है कोई थोड़ा बहुत यार, लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, को बैलेंस करना आती नहीं, इनकी शादियां हो जाती हैं। अबे भाई अरेंज मैरिज ही बैन कर दो इस मुल्क में, तो जो जिसको आता होगा ना, द पर्सन हु कैन डील विद वुमेन ओनली दे विल गेट टू मैरी, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। अब ये होते हैं इनको क्या हो गया, यूं बैठे होते शादी में, अच्छा हो गई शादी आज, अच्छा वलीमा हलाल करना है, ओके वो, अबे हर कहना नहीं चाहिए, स्टंटेड ग्रोथ वाले को आपने पकड़ा दी औरत, ये ले बच्चे पैदा कर, दबा के कर, करेगा, और जितने करेगा तुझे सवाब है, वो करे जा रहे हैं। अबे भाई बहुत इंटरवेंशन की जरूरत है, हमने 20-22 करोड़ का जो रेला जमा कर लिया ना अभी, ये किसी काम का नहीं है। हम बड़ा खुश हैं जी, 60% हमारी यूथ 30 साल से नीचे है। अबे 15 साल बाद ये हार्ट कार्डियो पे बैठे होंगे, ये 15 साल बाद 60% यूथ, फिर संभाल लेना इनको। अबे इनको काम पे तो लगाओ, कोई डायरेक्शन तो दो इनको, जिंदगी चलानी कैसे, करनी कैसे। बस जी शादियां कर रहे हैं बस धड़ा धड़। सो लाइक, और जो बाहर रहते हैं भाई कोशिश करें, ये जो बाहर वाली शादियां होती है ना यार, ये बहुत पेनफुल होती हैं। कोशिश करें अगर भाई अरेंजमेंट इस तरह का है कि यार साल 2 साल चलो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, ये नहीं कि जी 10-10 साल बाहर ही रह रहे। अबे भाई मैंने सारी जवानी क्या मैंने अकेले गुजारने के लिए शादी की थी क्या? एक बार जिंदगी मिलती है भाई, इस पे ज़रा सोच विचार के डिसीजंस लिया करें। सो आपका हार्ट ब्रोकन है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, एंड यूर एब्सोल्युटली राइट ऑन योर साइड। गलत बात है, हस्बैंड को समझाएं कि ज़रा भाई हमारी भी बात सुन लिया करें, सिर्फ अम्मी सही नहीं होती, जस्ट बिकॉज शी इज योर मॉम, जस्ट बिकॉज शी इज ओल्डर डजंट मीन शी इज राइट। हमारे यहाँ ना हम बड़े हम सही हैं, ये कौन सी लॉजिक है? हम बड़े हैं तो हम सही हैं, लगा के दिखाओ, इंटरनेट चला के दिखाओ मुझे जरा, मैं वाईफाई ऑफ कर रहा हूं, तारे मिला के दिखाओ, बड़े हो ना, सही हो करके दिखाओ। अबे भाई विजडम भी कोई चीज होती है, नॉलेज भी कोई चीज होती है, राइट? बच्चों को आज के स्नैपचैट चलाना आता है, आप फेसबुक भी बड़ा बड़ा करके यूं करके देखते हो भाई, टाइम्स हैव चेंज। ये अजीब लॉजिक है कि हम बड़े हैं तो हम सही हैं, नो, एंड व्हेन यू सेड दैट you're रॉन्ग। अगर आपको ये कहना पड़ा, अगर आप ये कहते हो कि जस्ट बिकॉज you're older so you're right, that means like that is the lowest of all lows, कि you're counting on just because कि आप दुनिया में पहले आ गए, तो यानी आपको सही होना तब आपको मिला कि when you I don't know how to put it in words, कि just because आप पहले आ गए, यानी वक्त लगाया आपने यूं बैठ के कि मैं बड़ा हो जाऊं तब मैं सही होऊंगा। That's shitty man. So ख्याल रखें बहन अपना, एंड अपने घर में रहें, आराम से बोलो भाई तुम आओगे तो मैं आऊंगी, ये क्या बकवास है। अब आप इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज माय ओपिनियन पर्सनली। खैर चल, ख्याल रखिएगा, थैंक यू। या आई जस्ट रियलाइज पिछले वाले सवाल में मैंने ऑडियो नहीं ऑन की हुई थी, आई एम सो सॉरी, अगर उसको मैं बढ़ा दूंगा एडिट से, बट सॉरी फॉर द बैड एक्सपीरियंस, बट वो इतना दिल से निकला हुआ था ना, वो दोबारा आ नहीं सकता वो फ्लेवर, सो आई केप्ट इट देयर। खैर थैंक यू सो मच। आज हम इतने पे ही रखते हैं बिकॉज 4:30 ऑलरेडी हो गए, 7 बजे मुझे रिलीज़ करना होता है। सो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी थर्सडे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ऑन पेट्रियन। तब मिलते हैं दोबारा, खुदा हाफिज़।